राइट बच्चों, समवन एल्स इज जॉइनिंग और दो तीन बच्चे हैं। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम उजनूर, शेजल एंड आई थिंक टू अदर किड्स हैव जॉइंड। खैर मैं नाम अभी नहीं देख पा रहा। मनाल कामरान and welcome you all. Let's start now. Recording has begun. We're doing the last class for June 23 variant. Sorry, first class for June 23 variant 23. और here goes the paper. अच्छा ये तो मार्क स्कीम है। मैं ज़रा पेपर निकाल लूँ जी बच्चे। ये आप लोगों को अक्सर स्कूल्स में मैंने मिड्स में दिया था सेक्शन ए। सो आई थिंक इट शुड बी क्वाइट इजी टू डू इट। ठीक है। आर डोनट्स demerit goods बहुत जल्दी से करते हैं। आई नीड पार्टिसिपेशन। Consumers love to eat donuts in 2019. 10 billion of these deep fried sugar coated products were consumed in the United States. Figure 1.1 shows the US market increased steadily from 2011 to 2015. Donuts are just a moment, G. Gee, donuts are. ah, Right. So donuts are widely available throughout the US. They are specialist. There are specialist shops selling their branded products almost everywhere. Local coffee shops invariably sell hole-in-one donuts as a particular breakfast snack to tempt consumers on their way to work. The growing number of shops selling donuts has been an important reason behind overall market growth. एएस वाले बच्चे लगता है अब सीरियस होना शुरू हो गए हैं बिकॉज एग्जाम्स पास आ रहे हैं ज़रा। A2 में इतनी अटेंडेंस नहीं हो रही। खैर एनीवेज जी, उसके बाद ये डायग्राम पे बाद में आएंगे। The COVID-19 pandemic has had varying impact on the US donut market. Despite having less income, many consumers have continued to buy small luxuries such as donuts, which remain affordable and can provide short term relief from the stresses of the pandemic. Overall, the sale of donuts fell in 2020 and are forecast to remain below their 2019 peak into 2021. Reasons for this fall in demand are that consumers are making fewer shopping trips in cities, more people are working from home, therefore not buying their daily coffee and donut snack. In United Kingdom, more than in the US, there are growing concerns about the increase in sugar consumption amongst children. Right, G? Amongst children, this increase comes from soft drinks, chocolate biscuits and sweets, candy, as well as from jam filled donuts, all of which are widely available in supermarkets and local convenience stores. In 2021, it was estimated that a third of teenagers and two-thirds of adults in the UK were overweight. This has increased the pressure on the UK government to end online advertising of a range of products, including donuts. It has been estimated that viewing 1 minute of advertising for products like donuts leads to a child consuming an additional 14.2 calories. Moreover, a ban on advertising sugary foods would result in children consuming the equivalent of 62 million fewer donuts in a year in UK. सो pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डेटा था और ये काफ़ी आसान सा था, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने ये बहुत बुरा अटेम्प्ट किया था। तो इसको थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ, स्पेशली ग्राफ बड़ा गलत बना हुआ था। Let's start with the first part, G. Using the data in figure 1.1, calculate the percentage change in the value of sales of donut in US from 2011 to 2019. अब इसकी जो कॉमन क्लासिक मिस्टेक्स हैं, बच्चा हर साल का कैलकुलेट करना शुरू हो जाता है। नहीं बेटे, 11 और 19 के बीच में जो चेंज है, परसेंटेज चेंज, वो कैलकुलेट करना है। इसको हम जाके फिगर्स देखते हैं। 11 में आयजा, जी जी मेरा बेटा। Anas, did I ask for the answer, मेरा बेटा? There's 30 kids in the class who are trying to work it out. Anas, आपने ये पहले किया हुआ था तो don't spoil it ना मेरा बेटा। ठीक है? Please do not volunteer information I ask. एक एक तरीका है ना, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है। आपको अगर ये आता था तो कईयों को हमने ये करवाना है। तो ठीक है ना, लेट्स वेट। आयजा, व्हाट वाज
approximate sale of donuts in million dollars in 2011? 5500 बिल्कुल सही बोला इन्होंने. एशलीना, what was the approximate sale of donuts in 2019? Look at it again. हाँ ठीक है, 2019 में 7000. So I think it's a bit higher. अशलीना दोबारा देखिएगा. हाँ, no, that would have cost you 2 marks. ठीक है, so 5500. ठीक है, 2009-11 में 5500, 2019 में 7500. अब बच्चे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज चेंज कहते हैं जी 2000 मिलियन से डोनट्स की सेल्स बढ़ी हैं. नो मार्क अगेन. मुझे बताएं, अनस आप ही बता दें, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट इट. इसका मतलब है कि आपने बस आंसर देखा हुआ था. बताएं बताएं, शाबाश शाबाश. हाँ, न्यू वैल्यू. बिल्कुल सही है, सही. सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. न्यू वैल्यू माइनस. एग्जैक्टली. हाँ, तो इसका फॉर्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100. सो 7500 माइनस 5500 इनटू 100, 36.3% एज फार एज आई रिमेंबर इसका आंसर था. इज दैट करेक्ट? अब बच्चों, आप लोगों ने क्या गलती नहीं करनी. आप लोगों ने अगर खाली 36.3% लिख दिया, शायद मार्क्स मिल जाएं. लेकिन हुआ क्या है, सेल्स इंक्रीज हुई है, तो आपको इंक्रीज ऑफ 36.3% इन द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ डोनट्स. समझ आ गया बच्चों? किसी को परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना अभी भी नहीं आता हो तो बताएं. Okay, everyone good? Let's move on to the second question. Explain one reason why the US market for donuts contracted in 2020. आनिश मेरा बेटा माइक ऑन करें. बहुत आसान है, पहले ही पैराग्राफ में उसने बताया है कि 2020 में क्यों डोनट्स की सेल्स गिरी हैं. वन रीजन हमने एक्सप्लेन करनी है इंफॉर्मेशन लेके. आनिश शाबाश, टेक योर टाइम. ओ सॉरी, नीचे 2020 में क्यों डोनट्स की सेल्स गिरी हैं. अनिश माइक ऑन करें सो आई नो यूर ऑन बोर्ड विद मी. डू नॉट हेजिटेट मेरा बेटा, मैक्सिमम गलत हो जाएगा. ये मिड्स में किया था, आप लोगों ने आइडिया होगा थोड़ा सा. टर्न ऑन योर माइक. जी. हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. क्यों बाइंग कम हो गई थी पेंडेमिक की वजह से? यस, जिसकी वजह से वो सुबह वाला कॉफी एंड डोनट स्नैक नहीं खरीद रहे थे. तो बहुत सिंपली, ड्यू टू वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन, ड्यू टू पेंडेमिक, people were traveling less, making fewer shopping trips, working from home, not buying their daily coffee and donut snack. Hence, the value of sales fell. इसी ना फोन छोड़ दो. Right? Doesn't matter. अब इसके बाद जी, number C. Comment on whether the demand for donuts in the US is income elastic or income inelastic. फिजा नवीद, आप बताओ बेटे. इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है. मुझे बताएं, क्या ये इनकम इलास्टिक गुड है या इनकम इन इलास्टिक. 2 मार्क्स लेने हैं आपने. फिजा, यू इन द क्लास? जी बेटे, वेटिंग. टेक योर टाइम. इनकम इन इलास्टिक डिमांड 1 मार्क. रीजन दें क्यों, क्या एविडेंस है सब. समझ आ गया. Incomes fell, but people continue to buy small luxuries like donut. Means, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. Proportionately smaller fall in quantity demanded compared to fall in income. Hence, income inelastic demand. हाँ, यहाँ पे आयजा कह रही हैं जी कि क्या ये
लग्जरी गुड है तो क्या इनकम इलास्टिक नहीं हो सकती? बेटे द वर्ड स्मॉल लग्जरी, और उसने खुद ही कहा है डिस्पाइट हैविंग लेस इनकम मेनी कंज्यूमर्स हैव कंटिन्यूड टू बाय, तो उनकी सेल्स पे इफेक्ट नहीं हो, इट टेक्स अ वेरी स्मॉल इनकम का पोर्शन। अभी आप लोग डोनट्स खा के आए हो, डू यू फील लाइक यू कंज्यूम लग्जरी? ओके, पाकिस्तान में बच्चे समझते हैं लग्जरी है, इट्स नॉट। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, दैट्स फनी एक्चुअली। यस, वैसे लग्जरी के वर्ड पे आई डोंट थिंक सीआई विल बी दैट यू नो यू नो गिविंग मार्क, दे नहीं देगा आपको मार्क, ठीक है, बिकॉज डेटा ये कह रहा है। तो पहले 6 मार्क्स, लेट से एक दो बच्चे ने गलती कर दी, 4 आ गए, नॉट बैड एट ऑल। जी अब मुझे चाहिए एक और बच्चा, मुस्तफ़ा फ्रॉम सिटी स्कूल, लाउड बोलिएगा। एक्सप्लेन व्हाई ए डोनट माइट बी रिगार्डेड एज अ डीमेरिट गुड। एक मार्क आ गया, और बोलें शाबाश। क्वेश्चन में ना डिफाइन कर दिया करो उस चीज को, खुद ही स्कोर आ जाता है। क्या क्या क्या, हाँ शाबाश, ड्यू टू लैक ऑफ, yes, very good. They are harmful for health, but consumer underestimate their harm due to lack of information. They are also overproduced. डेटा में क्या एविडेंस है जी? चिल्ड्रन जो हैं इन पे बहुत एडिक्टेड हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन है ओबेसिटी कॉज कर रही है लेकिन वो एहसास नहीं कर रहे। फिर इंफॉर्मेशन है कि 10 मिलियन स्मॉल शॉप्स हैं जो डोनट्स, होल इन वन डोनट्स बेच रही हैं। तो कुछ ऐसा कर दें, 2 मार्क्स आपके। आई थिंक इट्स अ रिलेटिवली इजी पेपर, 8 मार्क्स आपके आ चुके हैं। अब जरा जहां पे मार्क्स कटे थे मिड्स में आप लोगों के, वो जरा देखो। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, assess how the market for sugary foods in the UK might be affected by a ban on online advertising। आज ही बीसीपी आप लोगों को मैंने ये सारे फैक्टर्स रिवाइज करवाए थे डिमांड के। तो उजनूर काइंडली बी ब्रेव, टर्न ऑन योर माइक और मुझे ज़रा बताइएगा, अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे बैन होता है डोनट्स की, तो हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे और कौन से कर्व को किधर शिफ्ट करेंगे? शाबाश बेटे, डोंट बी शाय। ऑल राइट, नेक्स्ट बेस्ट, आई एम गोइंग टू अब्दुल्ला जाकिर। मुझे बताएं बेटे, कौन सा ग्राफ बनाएंगे, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होएगा अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डोनट्स की बैन होती है? मुझे थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी दें, जरा क्वेश्चन को दोबारा देखें। मार्केट का वर्ड उसने बोला है, मार्केट क्या होती है अब्दुल्ला? इकोनॉमिक्स में मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्री मार्केट, मार्केट फोर्सेस, व्हाट इज मार्केट? यस, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। तो आपने खाली डिमांड कर्व का वर्ड बोला, आई होप यू मेंट कि डिमांड एंड सप्लाई वाला डायग्राम बनाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी दिखाएंगे और फिर लेफ्ट पे शिफ्ट करवा के प्राइस कम और क्वांटिटी कम करवाएंगे। इज दैट व्हाट यू वर थिंकिंग अब्दुल्ला? चले, आई एम ग्लैड आपने ये बोला। बेटे जब भी वो डायग्राम बोले खाली डिमांड या सप्लाई शिफ्ट करना, याद रखिएगा 0 मार्क्स। मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये, दोनों बनाने हैं, बेसिक इक्विलिब्रियम बनाना है, डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करवाना है, ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी ट्रेडेड कम हो जाएगी। समझ आ गया? ये 2 मार्क्स थे आपके डायग्राम बनाने के। किसी बच्चे को इस ग्राफ में इश्यू हो तो मैं ड्रॉ कर दूं। अब नेक्स्ट चीज जी, मुझे बताएं, लेट्स से फहद, मुझे बताएं बेटे, मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा जब डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, नया इक्विलिब्रियम बनेगा? शुगरी फूड्स की मार्केट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस डिक्रीज होगी। अम, फैजान अरशद, आप मुझे बताएं, क्वांटिटी ट्रेडेड पे क्या असर पड़ेगा बिकॉज ऑफ फॉल इन डिमांड?
डिक्रीज हो जाएगी। ग्राफ बनाया, उसको एक्सप्लेन किया, सीधे आपके 3 मार्क्स आ गए। अब अशलीना आप मुझे बताओ, असेस का वर्ड है, हाउ सक्सेसफुल वुड इट बी, थिंक ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स व्हाई दिस online advertisement ban may not work. Um, from the data, we tell that because these donut shops are closely located to people's workplaces, regardless of whether they're being influenced by advertisements, they still might opt for those snacks. Okay, Number two is consumers can easily ignore these online advertisements when they you're can. not even there now. Sorry. The ban on online adverts will not work. I mixed it up. Sorry. So because Because huh? because there are Other other ways for other them to medias advertise. available, Yeah. television, billboards, दोनों पॉइंट्स ठीक थे जी। नंबर वन, online advertisement campaign may not reduce the sales of sugary foods much because number one, they are addictive and likely to have inelastic demand. ठीक है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर टू, देर आर अदर मीडियम्स अवेलेबल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टीवी, न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेक्सटिंग। सिर्फ ऑनलाइन का जो है वो वाहिद मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया मैंने गलत बोल दिया, ऑनलाइन सोशल मीडिया ही होता है। मतलब बाकी सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जी, people may switch to क्या उसको बोलते हैं, अदर अनहेल्थी स्टफ। और शुगरी फूड्स बहुत बड़ी टर्म है, इसमें सिर्फ डोनट्स नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सो शायद वाइट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हों उनके, तो उससे भी डिमांड इतनी कम नहीं होगी। समझ आ गया बेटे असेस को कैसे यूज करना है? अब आपके मार्क्स कैसे हैं एनालिसिस के, यहाँ पे आपको वन साइड के 3 तक वो देगा, 2 देगा, फिर दूसरी साइड के 2 देगा। ग्राफ बना के क्यों डिमांड गिरेगी, क्यों प्राइस एंड क्वांटिटी कम होएगी, 2 मार्क्स। फिर क्यों नहीं कम होएगी, अदर मीडियाज आर अवेलेबल, कंज्यूमर्स में हैव अदर वेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन इलास्टिक डिमांड, हैबिट फॉर्मिंग। जी आप क्या कह रहे हो? हैबिट फॉर्मिंग। उसके बाद मेरा बेटा ये हो गया। अब हम पे हम बात करेंगे, मुझे बताएं क्या इफेक्ट पड़ेगा शुगरी फूड्स की मार्केट पे, इवैल्यूएट करें जरा। हमने बात सारा एनालिसिस कर लिया, एंड रिजल्ट बताए कोई बच्चा मुझे? यस यस श्योर। शाबाश शाबाश शाबाश, दिस वाज परफेक्ट आंसर। ही सेंट मी दिस आंसर बिफोर द एग्जाम्स, और मैंने इनको करेक्शन करवाई थी, इन्होंने वो याद रखी हुई है। सो वेल डन अनस। अब इन्होंने क्या बोला है कि इफेक्ट मे बी ओनली टेम्परेरी बिकॉज इट्स जस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। लॉन्ग रन में इतना इफेक्ट नहीं आने वाला क्योंकि प्रोड्यूसर्स विल शिफ्ट टू अदर मीडियाज। ठीक है, कंज्यूमर्स माइट स्टार्ट बाइंग फ्रॉम ब्लैक मार्केट्स एज वेल, और साथ में इन इलास्टिक डिमांड है, तो इतनी इफेक्टिव होने का चांस नहीं है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? लास्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ रिपीट ऑफ दिस, लेकिन एक डिफरेंट एंगल पे। assess the likely effects on UK consumers and UK government of a ban on online adverts for sugary foods। अब बेटे इन 6 मार्क्स की वही 12 वाली ही मार्क स्कीम है। फर्क क्या है? नॉलेज एंड एनालिसिस के 4 हैं, अप टू 2 इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स गुड एंड बैड, अप टू 2 इफेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट गुड एंड बैड, और उसके बाद इवैल्यूएशन ओवरऑल इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन। वही 12 को आपने आधा करना है, 4 4 4 की बजाय 2 2 2। लेट्स गो टू सरजैन स्टूडेंट। बेटे कंज्यूमर्स पे क्या असर आएगा? डोंट टाइप बिकॉज आई एम ऑन दिस स्क्रीन, टर्न ऑन योर माइक। कंज्यूमर्स पे कुछ अच्छे इफेक्ट बताओ मुझे। वेरी गुड, यस स्टॉप हियर। पहला पॉइंट इन्होंने बहुत वैलिड दिया, इट वाज अ डीमेरिट गुड सिंस दे विल बी कंज्यूमिंग लेस, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। मुस्तफ़ा इसी पॉइंट को फर्दर बिल्ड कर सकते हो, जब उनकी हेल्थ बेहतर होगी तो क्या फायदा होएगा? नॉट बैड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। यस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कर्स विल बिकम मोर हेल्थी, लेस एब्सेंटी,
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनफ फॉर कंज्यूमर्स। एक आधा नेगेटिव कर दो, कंज्यूमर्स के लिए नेगेटिव क्या है? Of what? Of not having the answer. हाँ, Okay. उनका सरप्लस गिर सकता है, या यूं कहो कि उनकी चॉइस में कमी हो रही है, उनकी सॉवरेंटी में कमी हो रही है। जी, यूके गवर्नमेंट को क्या फायदा है जब लोग ये बुरी चीजें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं? आयजा, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर यूके गवर्नमेंट? There may be policing costs. है? Government. अच्छा, वो तो नेगेटिव है ना, कोई बेनिफिट पहले बताओ। Um, it could be that EPI would be better because consumers' health would be better. Consumers' health would be better, so government will have to spend less on national health service, तो उनका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। लेकिन दूसरा साइड, फ्लिप साइड, एक बच्चे ने भी सही बोला, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इतनी वाइड सेल्स हो रही थी इनकी, तो एज ए रिजल्ट टैक्स रेवेन्यू कम हो सकता है। अब जी इवैल्यूएट करें, ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मासिल जी, आपसे ही पूछ रहा हूं, ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव? श्योर? वो मैंने कंज्यूमर्स में कर दिया था, अगर उसको गवर्नमेंट के साथ करते हो, नो वरी एट ऑल, इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। दोनों बातें बिल्कुल जायज है। अब आप मुझे बताओ बेटे, ओवरऑल आपको नेट इफेक्ट क्या लग रहा है, अच्छा या बुरा, या अनसर्टेन भी बोल सकते हैं? यस, वेरी गुड। और डिमांड is likely to be inelastic, other medias are still available, hence the final impact is uncertain। समझ आ गया? Do not give them confused conclusion, I think this is good but that is good too, no no no, just give them yes or no, they like that। गलत भी बोल दोगे, they will still might reward you, but the mixed answer, Marcel, this was a really good answer, this is how it should be। everyone clear on this जी? ये हमने काफी दफा करा था, तो let's move on now to section B। explain with the help of example, sorry, the significance का word सबको पता होना चाहिए, लेकिन it means importance of the size and sign of the coefficient of income elasticity of demand for the classification of a good, and consider how confident you are in this classification। ये जो and consider how confident you are is evaluation 332, 3 marks for knowledge, 3 marks for analysis, 2 for evaluation। सबसे पहले मेरे बच्चों, नॉलेज की वही सेम कहानी। कौन बच्चा है जिससे मेरी बात नहीं हुई? लेट्स से वली। नहीं, वली आप नहीं करो, ठहरो, लेट्स वेट। कोई बच्चा वॉलंटियर कर दो। 3 मार्क्स कैसे लोगे नॉलेज के? सिंपल। हाँ जी, अनस। ऑफ व्हाट? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा मार्क किस चीज का? शाबाश, ये याद कर लें, ये 3 मार्क्स नॉलेज के कहीं नहीं जाएंगे। डिफाइन, फॉर्मूला, इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है। डेफिनेशन, आयजा ऊंचा ऊंचा बता दें इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की। It is the measure of responsiveness of quantity dependent to change in income of consumers. परफेक्ट डेफिनेशन जी, a degree of responsiveness of quantity demanded to a change in consumers incomes। अशलीना, फॉर्मूला? Uh, Change in पर्सन। percentage change in uh, percentage change in income over what? हमेशा ऊपर क्वांटिटी आती है बेटे, A percentage change in quantity demanded. so you lost a mark there। Percentage change in QD divided by percentage change in income। थर्ड मार्क जी, इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होगी? लेट्स से मुस्तफा, इनकम इलास्टिक डिमांड व्हेन? आप सॉरी, आप। मुस्तफा, ये गलती ना कीजिएगा, सही बोला है आपने, लेकिन मार्क नहीं मिलेगा। मैं क्या बोलता होता हूँ? परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट,
मैं बोल रहा हूँ इलास्टिक का, आपने उल्टा मुझे इलास्टिक का बताना है. व्हेन अ स्मॉलर प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम कॉजेज अ ग्रेटर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मुस्तफा उल्टा करें, इन इलास्टिक डिमांड. ग्रेटर, ग्रेटर. आप तो दोबारा वही कर रहे हो, फिर परसेंटेज नहीं लगाया और फिर इलास्टिक का बता दिया. दोबारा बताएं मुस्तफा. वी डन इट मिलियंस ऑफ टाइम्स. शाबाश. मैं आपको इलास्टिक का बता रहा हूं. व्हेन अ स्मॉलर, पहले हमेशा इनकम या प्राइस बोलते हैं. व्हेन अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन इनकम कॉजेज अ ग्रेटर प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. आप इन इलास्टिक का बताओ, पहले प्राइस इनकम का करना प्लीज, कॉन्फिडेंस से. आ नहीं, फिर इलास्टिक का बता रहे हो. स्मॉलर, फिर वर्ड भूल गए हो बीच में. स्मॉलर परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट. ये जिद नहीं करिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा. व्हेन अ ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन इनकम कॉजेज अ स्मॉलर प्रोपोर्शनेट फॉल या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये आपका तीसरा मार्क है. बट जो नॉलेज के मार्क्स लूज करना इज क्रिमिनल, डोंट लूज देम. अब बेटे एनालिसिस के लिए साइज एंड साइन, साइन की पहले बात करते हैं. किन गुड्स की पॉजिटिव साइन होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मासूम. It's normal. पॉजिटिव इज नॉर्मल गुड. अब इसकी तीन कैटेगरीज हैं, तीनों को इस्तेमाल करते हैं फॉर साइज ऑफ कोएफिशिएंट. साइज मींस नंबर. नेसेसिटीज का साइज ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है? रिलेशनशिप तो पॉजिटिव होता है. क्या वैल्यू होती है वाई डी की? साइज क्या होता है? That's because of स्मॉल, या कोई सही वर्ड बोलें. closer to zero. क्लोजर टू जीरो. इन इलास्टिक स्मॉलर वैल्यू क्लोजर टू जीरो. ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड फॉर नेसेसिटीज. ठीक है. अब उसने एग्जाम्पल्स मांगे हुए हैं, मुझे नेसेसिटी का एग्जाम्पल बताएं. Medicines, clothing, बेसिक food, मेडिसिन, यस. clothing, स्टेपल फूड्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा. ठीक है. आयजा आप बताएं सुपीरियर गुड्स का. inferior, superior. सुपीरियर इन लग्जरीज, सुपीरियर गुड्स. They are they are positive. Their positive coefficient and the size of coefficient will be Larger than greater than zero. One. वन. बेटे ग्रेटर देन वन. ठीक है. मींस इलास्टिक. ठीक है. एग्जाम्पल दे दें सुपीरियर गुड का कोई. आईफोन ब्रांड्स को जरा अवॉइड किया करें. आप कह दें जी लग्जरी कार्स, क्रूज ट्रैवल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. उसके बाद आ गई हमारे पास नॉर्मल. ऑल अदर गुड्स विद पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम विल बी नॉर्मल गुड्स. दे कैन बी एनीथिंग, नेसेसिटीज और सुपीरियर गुड्स. ठीक है. किनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बच्चों? इंफीरियर गुड्स. फहद जरा एक्सप्लेन कर दें क्या रिलेशनशिप है और साइज कोएफिशिएंट का क्या होगा? क्या नेगेटिव होता है? मींस व्हेन इनकम राइजेस देयर डिमांड, when income rises their demand falls. They have a negative relationship. Give me an example and then make a comment on size of the coefficient. कोई एग्जाम्पल दें इंफीरियर गुड का. शाबाश. हाँ, सेकेंड हैंड क्लोथिंग, सेकेंड हैंड थ्रिफ्ट स्टॉल्स बोल दें, थ्रिफ्ट शॉप्स. आपकी ये जो जो लोग बचत के लिए जिस वक्त खरीदते हैं, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, ये चीजें. अब बेटे 6 मार्क्स आपके हो चुके हैं आराम से एनालिसिस के. राइट. अब हम चलते हैं इवैल्यूएशन के. कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस क्लासिफिकेशन में कि ये नॉर्मल है, ये इंफीरियर है? जी. हाँ, इंफीरियर गुड्स का साइज वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ रिसेशन, फॉल इन इनकम एंड द लेवल ऑफ राइज इन डिमांड. डिफरेंट गुड्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. समझ आ गया? उनकी कोई नोन कैटेगरी नहीं है कि इलास्टिक इन इलास्टिक उनमें कुछ होंगी. ठीक है. अगर एक्सट्रीमली इंफीरियर है, बहुत बड़ा रिसेशन है, उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी. लेस इंफीरियर है और
मेजर रिसेशन है, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, समझ आ रहा है? तो उसमें हमारे पास क्लियर कैटेगरी नहीं है। इवैल्यूएशन जी, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, जब भी वो ये कहे लिमिटेशंस बताएं थ्योरी की। वाईडी की 4 लिमिटेशंस कौन बच्चा बताएगा? हिस्टोरिक डेटा होता है, इनएक्यूरेट कैलकुलेशन ड्यू टू सैंपल साइज, और जी कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम, सिट्रस पैरिबस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे कमेंट करो कि इट डिपेंड्स ऑन फैमिलीज इनकम, ईच पर्सन इंडिविजुअल रेफरेंस। फॉर अ रिच पर्सन लाइक इलॉन मस्क, नाम नहीं लेना आपने, a rich person, a necessity may be a luxury for a poor person, or a rich person's inferior good may be a necessity for a poor person. समझ रहे हो? So I am not fully confident in classification of these goods, and it is very subjective. जी मासिल का टाइम है, शायद बोलें। अच्छा आप थे, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन यही करना है कि वी आर नॉट टोटली कॉन्फिडेंट। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम आ गए हैं एक और कॉन्सेप्ट पे। हाँ, Didn't we do the buffer stock question? बफर स्टॉक रिपीट हुआ है ना, दिस इज द फायदा ऑफ दीज पास्ट पेपर I प्रैक्टिस। thought you said it was an infrequent question. इट वाज इसी साल में 2 वेरिएंट्स में आया था बस, उससे पहले ये कोई 2012 में आया था। ठीक है, सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन 2 पार्ट बी। नाउ दिस इज a slightly बल्कि quite tricky question. आप लोग जरा गौर करें, मुझे नेचर कॉल आई, I'll be back in about 2 minutes, ठीक है? आप लोग जरा इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। Ishneena, take over the class. Just discuss this question. Let's see how students think about it. Just take We're over. gonna put on a recording for you to come back. Okay, okay, just go ahead. Do you want to help me? To teach price elasticity of demand. आज हम सिखाते हैं. You want to introduce yourself? No, I don't want Okay, so my name is Ashalina, and this is Isa with me. Hello. You can't see her, but she's gonna say hello. Say hello. Hello. Say louder hello. यार कितना loud बोलूं? Okay, sure. So the question. I feel so awkward doing this. You do Okay. realize it's gonna go on YouTube, right? It's gonna be there forever. Oh no. I'm embarrassed now. Okay, so when the price of a product changes, it usually changes the consumer's surplus in the market. Assess how variations in price elasticity of a demand for a product determine the extent of changes in consumer. Thank you guys. How far have you got? We just read the question. Good work. अच्छा जी, let's now get back and जी बेटे, ये क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है अगर आपने नोट्स पढ़े हुए हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस, इट यूजुअली चेंजेस कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट। 12 मार्क का क्वेश्चन है तो काफी डिटेल्स देनी है। असेस हाउ वेरिएशंस इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस इन कंज्यूमर सरप्लस इन अ मार्केट। सबसे पहले नॉलेज एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं, अप टू 4 फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट कि कंज्यूमर सरप्लस है क्या, कहां नजर आता है ग्राफ में, और जब प्राइस फॉल हो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर पड़ता है, जब प्राइस राइज हो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर पड़ता है, डायग्राम्स बना के। आई मेक देम ऑल फॉर यू। फिर अप टू 4 वैरायटी ऑफ इलास्टिसिटीज की बात करोगे कि पीईडी जब इनइलास्टिक हो कंज्यूमर सरप्लस का साइज क्या होता है, जब इलास्टिक हो तब क्या होता है, और जब उस वक्त प्राइस चेंज हो इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड वाली गुड्स की, तब कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर पड़ता है। गुड न्यूज, इसमें हमें सप्लाई कर्व नहीं लगाना, बिकॉज सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस की वो बात कर रहा है और प्राइस चेंज की बात कर रहा है, कोई शिफ्ट वाला फैक्टर उसने नहीं दिया। जी मेरे बेटे बोलो। ये रिपीटेड नहीं है, वो दूसरा था इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी थी और कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर आया था, उसमें सप्लाई शिफ्ट होने से प्राइस बढ़ के हमने वो इलास्टिस के थ्रू किया था। यहाँ पे सिर्फ डिमांड कर्व के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस को करवाना, ये जरा वेरिएंस है। समझ रहे हैं अनस? ठीक है, अगर उस अप्रोच से भी करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन लेट्स डू इट फुली। और आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स सी जी। राइट, सो देयर इज अ क्वेश्चन। अब जरा सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ, व्हाई इज माय थिंगी नॉट वर्किंग?
ओके, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन दें मुझे, कोई अनएक्सपेक्टेड बच्चा, खामोश सा कोई बच्चा। ये थोड़ी सी गलती है इस डेफिनेशन में। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे, जो कंज्यूमर होता है, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। अब मेरा बेटा बताएं, ये डायग्राम पे कहां नजर आता है? इट इज द एरिया वेयर, बेटे बताएं। शाबाश, अब क्लास सेटल होना शुरू होगी है। मुझे इस बार फिक्र थी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन नाउ यू गाइस हैव स्टार्टेड गेटिंग हैंग ऑफ इट। बिलो द डिमांड कर्व एंड, नहीं इक्विलिब्रियम यहाँ वर्ड ना बोलो, बिकॉज यहाँ पे हमने खाली वो करना है। अबव प्राइस लाइन इज द मेन थिंग ना, अबव प्राइस लाइन। ठीक है जी, और तो कोई टर्म नहीं है? नहीं। अच्छा, पी डी को बेशक डिफाइन कर दें, कोई इशू नहीं है। PD is the measure of responsiveness of quantity, degree of quantity demanded to a change in price of the product alone. Just for the sake of it, define कर दो, फॉर्मूला वगैरह देने में टाइम जाया ना करें यहाँ पे। ओके जी, अब हम चलते हैं, इसमें बड़ा क्लियरली लेबल कीजिएगा। लेट्स से फिगर 1, बेसिक कंज्यूमर सरप्लस में दिखा रहा हूं, एक्सेस से स्टार्ट करें। प्राइस, क्वांटिटी, कोई प्राइस दे दें और उसके अंदर लिख दें, या जैसे दिल करता है 3 लेबल्स करके शेड कर दें और यूं करके बता दें कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईलाइटेड एरिया, या बीच में ए लिख दें, वो भी ठीक है। उसके बाद आप लिखें ऐसे फॉर्म में कि प्राइस फॉल विल क्या करेगा कंज्यूमर सरप्लस को? आयजा, प्राइस फॉल मैंने लिख ही दिया था, मैंने आपको पता ही था। खैर, विल रेज कंज्यूमर सरप्लस। जी बेटे, सॉरी। अब बच्चों एक डिमांड कर्व लगाएं, प्राइस, क्वांटिटी, और मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं लेबलिंग का। प्राइस लगाएं, डिमांड कर्व तक जाएं, और ये पहले आपका कंज्यूमर सरप्लस था। जब आपने प्राइस कम की, कंज्यूमर सरप्लस जो है ये बी और सी एरिया ऐड हो गया। सो इनिशियल बिफोर प्राइस फॉल वाज ए, और बाद में बी प्लस सी ऐड हुए हैं, और टोटल अब हो गया ए बी सी एट प्राइस P1। किसी बच्चे को कंफ्यूजन? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहे इसी में कह दो इफ प्राइस हैड रिजन टू P, कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल बाय BC एंड द रिमेनिंग कंज्यूमर सरप्लस विल बी A ओनली। समझ आ गया? ये हमारा एनालिसिस का पहला हिस्सा खत्म हो गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जी इलास्टिसिटी चेंज करते हैं। पहले हम बात करते हैं इफ डिमांड वाज इनइलास्टिक। अब यहाँ काबिल बच्चे थोड़ी सी रीजंस बता दो एक आधी कि क्यों इनइलास्टिक होगी। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम है, ब्रांड इमेज है, कोई हैबिचुअल प्रॉपर्टीज हैं गुड की। अब काफ़ी इनइलास्टिक सा डिमांड कर्व लगाएं और प्राइसेस दो दें, पी, P1, और बीच वाला एरिया मैंने तो छोटा कर दिया, लेकिन चले ए बी सी, कि व्हेन प्राइस वाज पी, कंज्यूमर सरप्लस वाज ए बी सी, व्हेन प्राइस रोज टू P1, कंज्यूमर सरप्लस इज ओनली ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर खाली प्राइस चेंज वाला डायग्राम है तो इसमें जब इनइलास्टिक डिमांड हो, कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा इफेक्ट होता है प्राइस चेंजेस से। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जब टैक्स लगता है इनइलास्टिक डिमांड में, कंज्यूमर्स पे ज्यादा बर्डन जाता है और उनके सरप्लस में ज्यादा कमी होती है। लेकिन यहां पे बात फर्क है, इट्स जस्ट द प्राइस चेंज। ठीक हो गया? फिर हम यही काम कि इफ डिमांड वाज इलास्टिक से ड्यू टू प्रोडक्ट बीइंग अ लग्जरी, मेनी सब्स्टिट्यूट्स, डिमांड कर्व इलास्टिक लगाएं। अब दो प्राइसेस दे दें, अगेन P1 पे आएंगे। कुछ देख रहे हो, कंज्यूमर सरप्लस वाला एरिया बड़ा है,
ए था पहले खाली पी प्राइस पे, और अब ए बी सी है, बी एंड सी इज द राइज. सो ग्रेटर चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, एंड फॉर स्मॉलर चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक. समझ आ गया? किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? वापस क्वेश्चन को देखते हैं. श्योर बेटे. ये सिर्फ जब, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मैं इसी में बोल देता हूँ ना. देखो जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगा के इसी को आपको, इफ प्राइस हैड रिजन फ्रॉम पी टू पी वन टू पी, कंज्यूमर सरप्लस वुड हैव फॉलन फ्रॉम ए बी सी टू ए, रिडक्शन वुड हैव बीन सी एंड बी व्हिच इज लार्जर बिकॉज डिमांड वाज इलास्टिक. समझ रहे हैं फिजा? इसी में आप टॉगल यूज करें ना, एरो डाउन एरो अप, कितने ग्राफ बनाएंगे. अच्छा, जो बच्चे को समझ नहीं आ रही थी बेटे, आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होएगा आपको खाली प्राइस वाला, आपको आएगा इनडायरेक्ट टैक्स लगा है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, कुछ ऐसी बात. उस केस में जब डिमांड इनइलास्टिक हो, कंज्यूमर सरप्लस पे ज्यादा असर पड़ता है. ठीक है. इस केस में खाली प्राइस चेंज पे कंज्यूमर सरप्लस पे इनइलास्टिक डिमांड में थोड़ा असर पड़ता है. यही आपकी वैल्यूएशन. समझ आ रहा है मेरे बच्चों? आप मुझे बताएं अनस, जब प्राइस पी थी कंज्यूमर सरप्लस कितना था, और जब पी वन हुई है अब सरप्लस कितना है? नहीं, ए भी तो शामिल है ना. ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी पूरा एरिया बिलो द डिमांड के अबव द प्राइस लाइन. ये बी सी बड़ा है या इनइलास्टिक वाला बी सी बड़ा है, मुझे ये बताओ. यस, तो जब इलास्टिक डिमांड हो और प्राइस चेंज हो, ज्यादा इफेक्ट आएगा कंज्यूमर सरप्लस पे. लेकिन जब टैक्स वगैरह वाला होगा तो इनइलास्टिक में ज्यादा इफेक्ट आएगा कंज्यूमर सरप्लस पे. समझ आ रहा है? थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है लेकिन समझ आ रही है बात. जिसमें हम सप्लाई कर्व शिफ्ट करते हैं, चाहे कॉस्ट की वजह से चाहे टैक्स की वजह से, उसमें इनइलास्टिक डिमांड पे ज्यादा बर्डन आता है, कंज्यूमर पे ज्यादा सरप्लस उसका कम होता है. इस केस में क्योंकि खाली डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप था, तो ये चक्कर है. अब बहुत अच्छे बच्चे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का भी बना दो कि जी अनलिमिटेड कंज्यूमर सरप्लस है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, प्राइस लाइन ही डिमांड कर्व है, जीरो कंज्यूमर सरप्लस है. सो अब आपके पास इवैल्यूएशन का बहुत मवाद है. एज डिस्कस्ड अबव, मैं क्वेश्चन को सामने रख रहा हूं. एज डिस्कस्ड अबव, व्हेनेवर प्राइस फॉल्स कंज्यूमर सरप्लस राइजेस, whenever price rises consumer surplus falls. How much will be the change will be dependent on, कौन सा वर्ड बोलेंगे? यस, बोले बोले, शाबाश. will depend on PED. ठीक है, will depend on PED as shown above in the diagrams and the discussion. If demand is elastic, there'll be a greater change in consumer surplus due to price changes, and if demand is inelastic, there'll be a smaller change in consumer surplus due to change in prices. प्लीज इसको कर लीजिएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही याद रखिएगा. इन इलास्टिक डिमांड और अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो ज्यादा बर्डन भी कंज्यूमर पे जाता है, ज्यादा सरप्लस भी उसी का कम होता है. सबको समझ आ गया बच्चों? All right, I'm closing the class right here unless you guys have any questions.